Mr. Manish, you are appearing for which interview? 1 second, sir. Hello. Yeah, you are appearing for which interview? Sir, CWC Central Warehousing, sir. Oh, Central Warehousing Corporation for the Yes, sir. post of superintendent. Yes, superintendent. Yeah, good. Northeast. Now, did you go through the recent questions I have posted? Yes, sir. I have gone through. Yeah. Now, can you please tell me about yourself? Introduction. Sir, my name is Manish Kumar. I am belong from Sukhrauli, Bhojpur district, Bihar. I have done my graduation in BCom in 2017, and I have also done my MBA IB International Business in 2021. After that, I am preparing for the government exams. Mhm. When you that last time you completed your MBA in 2021. 21. Yes, sir. Yeah. You studied international business. Yes, sir. I have studied international business, sir. What are the subjects you studied in that PG? Sir, managing economics, supply chain management, account, manager, business behavior, Hmm. organizational behavior, leadership, and Hmm. international marketing. Hmm. Hmm. There are इंटरनेशनल 32 subjects. इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या पढ़ा है जी? सर आज है मतलब कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में सर जो हम मार्केटिंग करते हैं कोई भी हाँ चीज जैसे बोलिए। हम लोग इंडिया मार्केटिंग करते हैं हम्म। एनीथिंग तो वही हम्म। चीज सर हम इंटरनेशनल करते हैं जो इंडिया हम्म। में होता है वही ब्रॉड एरिया है उसका जो हम्म। हम लोग होम कंट्री में करते हैं कोई भी मार्केटिंग उसका ब्रॉड एरिया है मतलब ओवरसीज है मतलब आउट ऑफ क्या इंडिया उसको वही सेम चीज को हम आउट ऑफ इंडिया करते हैं क्या क्या चीज हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं? सर गुड्स में सर सारा चीज करते हैं सर गुड्स में सर आपको बुक्स हो गए खाने पीने की सब्जी हो गए खाने पीने के लिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे हैं और मैक्सिमम सर सारे सर सारे प्रोडक्शन हम लोग एथी करते हैं सर एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट ऐसा बोलने से कैसे मार्क देगा आपको? डू यू थिंक द आंसर गिवन बाय यू इज करेक्ट? नो सर करेक्ट। नो सर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ माय या आंसर देखिए, इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट्स रिफाइंड पेट्रोलियम, mineral मिनरल्स fuels, machinery and mechanical appliances, electrical machinery, organic बाइक chemicals, vehicles. आप पढ़ लीजिए, फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ लीजिए। रिफाइंड पेट्रोलियम, refined petroleum, minerals, fuel, machinery and mechanical appliance, electrical machinery, organic chemical, vehicle, pharmaceutical products, iron, steel, carriers, iron, steel, aluminium, apparel, chemical product, cotton, seafoods, sugar, clothing, rubber, medical device, coffee, tea, and spices made. मीट मीट क्या पता नहीं। कॉफी Made, टी made, एंड made. मीट ऐसा में भी कुछ Spice. चीज है। मीट का मतलब Sir, I'm not हमने know देख it. हमने मीट को ऐसा में भी कुछ चीज है ना, क्या हमने देखा नहीं? Sir, I have not hear about any. ये तो स्पेलिंग गलत था मेरे ख्याल से। MATE, I think. मीट ही अच्छा। मीट डेफिनेशन: Mate means mate is a traditional South American caffeine rich Okay. infused herbal drink. Oh, something related to coffee. Yes, sir. Yes, sir. What does Kind mate of mean? fruit. The meaning of mate is friend. That is different. But यहाँ पर ये देता है aromatic beverage used chiefly in South America, especially in Paraguay, that have stimulant properties like those of coffee. Okay, good. Yes, sir. So because you studied international, ये सब क्वेश्चंस आएगा आपको। एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, और हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? Yes, sir, Shankar. वेरी गुड, एक्सलेंट।
Now, supposing a person has to take up exports, what are the important formalities he has to comply? Sir, Can for every export, Hmm. sir, firstly you have to register. अभी for example, sir, I have taken an example. अगर कोई shipment you want to send a shipment USA, first of all they should file the ISO file, import security officer in the USA, because before the sending the shipment USA, you have to file the ISO file before 1 month. You have to given the clarity on the which person is sending, which person is receiving, all the details. Hmm. उसके बाद सर इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है सर, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है। Hmm. अब उसके बाद ही कोई शिपमेंट बाहर जा सकता है, उस कंट्री रिसीव कर सकता है, वहां Hmm. पे कंट्री पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद ही वो जाएगा। उसके लिए सर Hmm. बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे में आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पोर्ट क्लियरेंस हो गया सर, No, कंट्री no. का सर। आपने क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का बारे में नहीं बताया? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ सर, सर वो तो सर जिसके थ्रू हम भेजेंगे उसको तो लाइसेंस ऑलरेडी होगा सर। अगर हम डायरेक्ट हम कोई किसी भेज नहीं सकते हैं, किसी ट्रेडर के थ्रू हम भेजेंगे। ये तो तो अगर सो ट्रेडर के थ्रू सर भेज रहे हैं तो उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा। आई एम टेलिंग यू आर एन एक्सपोर्टर। यस सर। का मतलब पहले आपने आरबीआई की इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसका बारे में आपने बैंक अकाउंट खोलना है, आपने मैन्युफैक्चर करके उसको आप भेजना है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, फाइन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट? सर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जैसे दो कंट्री में शिपमेंट होते, जैसे दो कंट्री में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो सर क्या होता है ना कि दो बैंक, यहाँ कंट्री के होम कंट्री के बैंक और अदर कंट्री के बैंक। फॉर एग्जांपल मतलब अदर कंट्री में कोई शिपमेंट हम भेज रहे हैं तो वहाँ के हम पार्टी को हम नहीं उतना जानते हैं अच्छे से, वो कैसा है कैसा नहीं है। वे भी हम कोई अगर शिपमेंट भेजते हैं तो उसका पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सर यहाँ पर हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं। वहाँ के अगर अदर कंट्री के बैंक से वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है, यहाँ की कंट्री होम कंट्री के बैंक को ये लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। अगर कंसाइनमेंट हमने भेज दिया, मे भी सफिशिएंट, अगर वो किसने नहीं सफिशिएंट, होता तो सर वो सफिशिएंट। आपने सही बता दिया, गुड। आपने सुना है व्हाट इज जेम, GEM? सर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है सर। व्हाट इज ई नाम? गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। ई ई नेम नाम। सर, नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। डिड यू विजिट एनी वेयर हाउस? नो सर, आई हैव नॉट विजिटेड एनी हाउस वेयर आर यू टिल स्टेइंग? नाउ। सर आई एम स्टेइंग इन बिहार सर, विलेज सुखरौली। बिहार में विच प्लेस? सुखरौली सुखरौली सर, विलेज सुखरौली, गांव है सर शुक्र। उधर सुखरौली। से आपको नियरेस्ट वेयर हाउस कितना दूर होगा? सर नियरेस्ट यार सर पटना का एटलीस्ट 100 किलोमीटर प्लस। ओहो, ठीक है। वेयर हाउस का आपने कभी कहाँ पर देखा? फिल्म में देखा, और बुक में देखा, और फोटोज में देखा, और वेबसाइट में देखा? उसका बारे में हमको एक्सप्लेन कर दो जी। वेयर हाउस का मतलब क्या है, उधर लोग क्या काम कर रहे हैं, उसमें पहले ये बता दीजिए, बाद में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। सेंटर वेयर हाउसिंग का मतलब होता है सर, इट इज अ प्लेस वेयर कैन यू स्टोर द गुड्स। वी कैन कोई भी गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम प्रॉपर वे से स्टोर कर सकते हैं, ताकि वे हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हम इजीली हमें मिल सके। हम्म। वेयर हाउस को होता है। हम्म। और सर सेंट्रल वेयर हाउसिंग क्या है सर, इसका फंक्शन क्या है सर? सर ये कोल्ड स्टोरेज थी प्रोवाइड कराता है, कस्टम बॉन्डेड प्रोवाइड करवाता है सर, और कहती है रेल रेल फ्रेट कंटेनर प्रोवाइड करवाता है सर, और वेयर हाउसिंग स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सर, और हाँ रेल साइड वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है सर। हम्म। मच मोर है सर, और भी है सर। कंटेनर रेल ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सर वही आईसीडी। फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विसेज, यस देन
engineering consultancy services, parcel parcel train services, something like that. Who are our important customers? our important question vehicle. Vehicle No, तो sir, अभी no, sorry, sir. This is not a what is a customer, but you have not remember. नो नो सेंट्रल वेयरहाउसिंग का कस्टमर्स का नाम क्या है? मेजर कस्टमर्स. Sir, अभी sir yes, sir I will not gone through. प्लीज पढ़ लीजिए उसका. Yes sir, ये सब कस्टमर का मेजर थे सर. बर्गर पेंट. हम्म. व्हाट इज पब्लिक सर ये सेक्टर डे? व्हाट इज पब्लिक सेक्टर डे? पब्लिक सेक्टर डे सर का अंडरटेकिंग. Which date is celebrated as Public Sector Day? सर विच 10th डेट. April. 10th April. 10th अप्रैल. 10th April. यस सर 10th अप्रैल पब्लिक सेक्टर डे. या पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? सर के इट इज मतलब कि गवर्नमेंट का 51 प्लस है. मतलब 50 प्लस है शेयर होल्डर होगा सर. हाँ, किसी भी वेरी कंपनी में अगर गवर्नमेंट 50 एक्सलेंट, प्लस शेयर होल्डर होगा वो गुड. पब्लिक सेक्टर. हमारा CWC का कैपिटल कितना है? ऑथराइज कैपिटल सर कितना है? पेड अप कैपिटल कितना है? सर ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ है. पेड अप कैपिटल 68.02 करोड़. वेरी गुड. अभी इस बार हमारा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड पेमेंट किया है? सर डिविडेंड कितना पेमेंट किया है? सर 140 crores और so. ये 100 एंड वेबसाइट में होगा, उसको पढ़ लो जी. अबाउट अस. सर गवर्नमेंट को सर पेमेंट करेगा सर. हाँ हाँ. डिविडेंड तो शेयर बिकॉज होल्डर को पे होता है ना सर. हाँ सर गवर्नमेंट को भी है सर उसमें. no no the CWC is sending the dividend to government because government is a shareholder. यस सर द गवर्नमेंट इज ओनली 55% शेयर होल्डर. Yeah. 21% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI. अच्छा 7% अच्छा इंश्योरेंस एंड अच्छा अदर. अच्छा अच्छा मेरा आंसर गलत. नो नो बट इसमें हमने पढ़ा था we have paid a dividend of 140 crores to government. हमने पढ़ा था. CWC ध्यान एट नहीं अगला. हम. यहाँ देखिए यस इधर में है. सी CWC has paid. अच्छा अच्छा you need not say government. CWC paid in dividend of डिविडेंड. 140 crores. Dividend बोलना, not to यस सर. government. Not to यस. government. You are यस सर right. डिविडेंड होता है सर कि जो हमने प्रॉफिट कमाते हैं तो अपने शेयर होल्डर को डिवाइड देना होता है. कोई And कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो पे yeah, करती है शेयर what is होल्डर. the total net worth of the bank of the company? 2232 करोड़ Wrong. अप्रॉक्स. Wrong. 2,824. यहाँ देखिए ऑनलाइन में. 2824 करोड़. हाँ यस सर. Yeah, very good. हमने आपको you have studied MBA. How are you going to help us increase the occupancy of warehouses? सर Where आई हैव डन. हमारा काम बढ़ाने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? Sir, first of all, I have done my MBA. I have learned how to manage the things, how to हम्म मतलब कि tackle the people's, how to subordinate, how to tackle the हम्म subordinates, how to arranging the goods and manage the goods, how to export, but how to हम्म make a supply chain efficient. हम्म Basically, export CWC is providing supply chain management, supply हम्म chain. We हम्म have also studied in our the curriculums how to manage the supply chain management. हम्म One of the my subject it was हम्म. sir. That's अभी it is a अभी आप किसी जगह पर काम किया कभी? नहीं. sorry, yes sir. I have done my sir. I have work in the Titanic Ocean Private Limited, the export import company. अच्छा, कितना साल काम किया? 1.5 years sir. उधर में क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट था? सर मेरा काम था प्राइजिंग करना. मतलब कि इस कंट्री से किसी और कंट्री भेजना था तो मुझे कोटेशन वैसे मेल आते थे कि हमको हम्म फॉर एग्जांपल कि जैसे थॉमसन है कंपनी है थॉमसन वो बाइबल्स बुक बेचता है. तो मुझे मेल किया कि मेरे पास बाइबल बुक्स है ये 20 फीट कंटेनर के बराबर. ट्वेंटी हम्म फीट कंटेनर हमको भेजना है. इसे US में भेजना है, UK में भेजना है.
तो मुझे वहाँ इंडिया से लेकर वेयर हाउसिंग से लेकर उसके हमको यूके का वेयर हाउसिंग का पूरा प्राइस कैलकुलेट करके दे दीजिए सर। वो गुड। मेरा काम था। हाँ तो मेरा काम था वहाँ इंडिया से लेकर क्या क्या प्राइस होंगे, क्या क्या कस्टम क्लियरेंस चार्ज होगा, जो भी होगा सर, पोस्ट चार्जेस कितने होंगे, लोडिंग अपलोडिंग कितने होंगे वहाँ पे सर, टर्मिनल चार्ज कितने होंगे, कस्टम क्लियरेंस कितने होंगे, वहाँ का एजेंट सब कोऑर्डिनेट करना था सर। ये मेरा प्रोफाइल था सर। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? सर इट इज ए सर, कोई कंपनी के ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। If the company have not gained a profit, no, have not done any loss, that is called break even. Tell me. Hello. Yes, sir. Break even point, no loss, no profit. No profit. It's called break even point. Yeah, ऐसा नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट डेफिनेशन देख लेंगे, बेटर डेफिनेशन होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इंडिया। What is break even point? How to calculate break even point? When running a Including business, ground and cost. a lot of costs are involved. There are labor, materials, rent, marketing expenses, and insurance. To make profits, the total revenue from sales should be more than the cost of production. However, before you make profits, there is a point where revenue from sales will be equal to the cost of production. आपने बोला ज्यादा ज्यादा नहीं, नहीं equal to सर, the yes sir, अभी नहीं profit नहीं loss हो sir. That is called break even point. In technical terms, के price changing the price and changing the price and changing the cost is equal. That is called break even point in technical term. फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। आई एम गिविंग दिस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, Yes, sir. वेयर इज व्हाट्सएप? गुड। 9410. ये दे दिया, हमने दे दिया। इसका बारे में नेक्स्ट वन, कैन यू टेल मी अबाउट इनको टर्म्स? इनको टर्म सर एक्स वर्क एफओबी डीडीयू डीएपी डीडीपी डीडीपी सर, देयर आर 11 इको टर्म्स, टोटल 11 इको टर्म्स है। एक्स वर्क, डीडीयू, डीएपी, एफओबी और एफओबी एंड दीज आर दी थिंग्स। यस सर, एक्स वर्क एफसीए, हाँ सर एफसीए, एफओबी सीपीटी, सीपीटी का मतलब क्या है? कैरिज पेज टू, मतलब कि जो भी कंसाइनिंग होता है सर, जो बायर होता है, हमें कोई पोर्ट का नाम दे देता है, वहां तक मुझे ये शिपमेंट दे दीजिए, वहां के बाद आप हैंड ओवर कर देना होता है सर। वहां के बाद शिपमेंट जो कंसाइनिंग है वो अपना हैंड ओवर कर ले, टेक ओवर करेगा सर। और ये उसका सब पेमेंट आप भी सर, ये सब आप पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है? यस सर, टोटल यू 11 इनको यू टर्म सर। यू नो इट, फिर भी आप पढ़ लीजिए, इनको टर्म्स को पूरा पढ़ लीजिए। यस सर, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर इसको आइडिया नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर, क्या मैं इंटरनेशनल बिजनेस था, हम लोग सब फाइनेंस नहीं था, तो आइडिया नहीं है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर ये तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? If, for example, you spend time and money going to a movie, you cannot spend that time at home reading a book, and you cannot spend the money on something else. If your next best alternative to seeing the movie is reading the book, then the opportunity cost of seeing the movie is the money spent plus the pleasure you forego by not reading the book. Okay? यस सर, या इसको पढ़ लीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरूर दे विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसका बारे में प्रिपेयर कर दीजिए। ओके सर, आई विल रीड गो थ्रू। या देन व्हाट इज बॉन्डेड वेयर हाउस? Sir, bonded warehouse is a place when where the any goods, any shipment come India,
सर कोई भी शिपमेंट अगर बाहर से इंडिया आता है तो वो कस्टम क्लियरेंस के लिए टाइम लगता है सर, कुछ डे के हम्म लिए, 1 हफ्ता 10 डेज। हम्म वो ड्यूरेशन को, शिपमेंट को जिस जगह पर रखा था उसको कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसिंग कहा जाता है। गुड। ये आई थिंक यू नो इट, फिर भी चाहिए तो इधर में मिलता है, सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने सही बता दिया। गुड। तो नेक्स्ट सर कैन यू। 10 यस सर, एक हफ्ता पढ़ा था आपने? 1 हफ्ता 10 दिन लगता है सर कस्टम क्लियरेंस होने में सर। तो उस अच्छा। टाइम के लिए वो उस जगह पर रखा जाता है सर, उसी को हम लोग व्हाट इज बॉन्डेड वेयर हाउस। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस ऑफ CWC? सर स्ट्रॉन्ग, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी टेस्ट होता है सर। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रेंग्थ्स। सॉरी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी टेस्ट, अपॉर्चुनिटी। है। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, 4E80। आपने पूरा पढ़ा नहीं जी। आप खाली ये आंसर नहीं है, आपने हमको CWC का स्ट्रेंग्थ क्या है, सो वीकनेस क्या ओके है, सर, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये बताना है। इसके लिए प्रिपेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको प्रिपरेशन मेरा ख्याल से पूरा नहीं है, क्योंकि बार बार अपनी बात करने के समय पर ची ची बोलते हैं, आप जानते हैं आप। हेलो। यस सर। आपको समझ गया व्हाट हमने क्या बोला है? सर नहीं समझे। No, no. While talking during the discussion in the interview, 4 times you told che because आपने कुछ गलत बोल देते हैं, इसका बाद में चे ऐसा बोलते हैं। Are you aware of that or not? नो सर, नहीं, आई एम नॉट अवेयर। नहीं जानते हैं। Without your knowledge you are doing it. कुछ कुछ चीज हमने पूछने से तो, इनको टर्म्स पूछने से तो कुछ बोलने के बाद छे लाइक बोल के आपने आंसर देते हैं। ओके। Otherwise, you are answering very well. Best wishes, and you have to go with more confidence. The questions will be on India's exports and imports, then India's efforts, balance of payment, इसका बारे में आएगा. Then about CWC, जो क्वेश्चन हम अभी पूछा है, along with SWOT, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सब आपने बोलना है। इसमें वीकनेस बोलने के समय पर ज्यादा मत बोलो, खाली स्ट्रेंथ को अच्छा बारे में बोलो, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा दे बोल दो। ओके, डू यू फॉलो? यस सर, आई फॉलो। या, वुड यू लाइक टू टेल मी स्वॉट एनालिसिस ऑफ CWC? यू नो इट? सर स्वाट मीन्स स्ट्रेंथ है सर, हम्म सीडब्ल्यूसी का स्ट्रेंथ है सर कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई प्रोवाइड करता है सर, बहुत ही वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है सर, बहुत सारा फूड ग्रेन सेव होते हैं सर, उससे स्पॉइल नहीं होते सर, बहुत सारे मतलब लॉजिस्टिक हर स्टेट में वो लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है सर। हम्म वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सर, फ्रेट ट्रेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर, रेल साइड वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा है सर। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सीडब्ल्यूसी। हम्म वीकनेस इज सर कि सर सीडब्ल्यूसी का वीकनेस हो सकता है कि सर, मतलब कि इसमें सर लॉजिस्टिक सप्लाई करने में लॉजिस्टिक सप्लाई करने में बहुत सारे सर थी, मतलब कि कमी थी, हम्म मतलब बहुत सारे कमियां भी हो सकती है सर, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकती है सर, क्या बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया भी नहीं हो सकता है सर। हम्म अगर किसी स्टेट में अगर कोई वेयर हाउसिंग खुलता है सर, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो सर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छा ना हो सर, कि उसके लिए वीकनेस हो जाएगा सर हम्म सीडब्ल्यूसी के लिए, हम्म क्योंकि सप्लाई चेन वहां पर सर बैरियर होगा सर। हम्म सर अपॉर्चुनिटी है कि सर ये ऑल इंडिया, ऑल ओवर द क्रॉस द इंडिया सर, ये अपना वेयर हम्म हाउसिंग एक्सपेंड हो रहा है सर। हम्म अपॉर्चुनिटी है सर कि बहुत सारे अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कारण वेयर हाउसिंग की बहुत सारे जरूरत पड़ेंगे सर, जिससे कारण ये अपॉर्चुनिटी है सर वेयर हाउसिंग के लिए कि हम्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज कल थी इंडिया, मतलब कोई अदर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम कर रहा है सर, उसके लिए हम्म गवर्नमेंट को वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगा, कंपनी को वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्राइवेट बहुत कम वेयर हाउसिंग है। तो सर हम्म ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी है सर। और हम्म टेस्टिंग सर के हमें
किसी अगर वेयर हाउसिंग खोलते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि किसी स्टेट में चाहे कहीं भी कोई भी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो सर वेयर 12:30। हाउसिंग खोलने में। हम्म हम्म, बोलिए। सर टेस्टिंग मतलब कि सर हम लोग कहीं भी अगर वेयर हाउसिंग खोलते हैं तो वहां पर हम लोग एनालिसिस करें, कोई तरह का बैरियर ना हो, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे कोई दिक्कत ना हो सर हम्म टेस्टिंग में सर। Good. Best wishes. You are doing very well. I wish you all the best. Attend the interview and send the questions they are asking, just as other candidates. Okay? ओके सर Hmm. Any questions you want to ask? सर नो सर, तो सर As फाइनली it is, कितनी। I will give you, I will give you how much? Say about 8.5 out of 10. And mostly you will be selected if you have scored good marks in the test also. Okay? यस सर, क्योंकि सर मेरा टेस्ट मेंस में सर मैंने 165 अटेम्प्ट किया था, तो मेरे ओहो, मेंस में मार्क्स अच्छे होंगे। अच्छा ही है। वेरी गुड। बट आपने बीच बीच में इच्छे इच्छे ही बोलते हैं, क्यों? सर वो क्योंकि सर वो हमारी मदर टंग है सर, मदर टंग है सर, वो गांव की जो लैंग्वेज होता है ना सर, जिसके कारण वो निकल जा रहा है सर, आई नो। मदर टंग है उसको सर। उसको थोड़ा केयरफुली कंट्रोल कर लो। सर ठीक हम है। लोग विलेज गांव में रहते हैं सर, हम लोग विलेज में रहते हैं, तो वहाँ हम लोग अब थोड़ा सा इस तरह से टंग, हम लोग मदर टंग यूज ज्यादा आई होता है, आई मैक्सिमम होता आई नो, बट फिर भी इंटरव्यू में उतना बोलना नहीं ना। है। यस सर, ठीक आई विल ठीक है, देख लो। ट्राई। यू विल बी सेलेक्टेड। बेस्ट विशेस। सर और भी क्वेश्चन कोई पोस्ट मतलब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दिया हो तो सर क्वेश्चन। तो ऑलरेडी ऑल क्वेश्चंस हमने तो हमारा वेबसाइट में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है ना। हाँ, सर इसी यही ये तो सर, हाँ ये तो हम देखा है मैंने सर, ये क्वेश्चंस तो अगेन आपको यही पूछेगा। दीज आर सर द उससे एक क्वेश्चंस। साधना, सर सर एक साधना मिश्रा थी सर नॉर्थ ईस्ट, सर उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पता नहीं, उन्होंने दिया नहीं ना। आई डोंट नो वेदर शी हैज सेंड। यू आर आल्सो गोइंग फॉर नॉर्थ ईस्ट। यस सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सर। ओहो, साधना मिश्रा का नंबर जानते हैं आप? नो सर, आई नो, आई हाँ, डोंट नो यू सर। डोंट नो। साधना मिश्रा, एक मिनट ठहरो, हमने तो पूछ लेते हैं। साधना मिश्रा। आई नो, बट अभी तो हमारा चेन्नई से इधर आ गया ना। अभी समय भी डिफरेंट होता है। अम, साधना मिश्रा। हाँ, 1 मिनट, इधर से देख सकते हैं। आई थिंक आई कैन गेट इट हियर। साधना मिश्रा। फेडरल फेडरल। साधना मिश्रा। चित्तीरा। चित्तीरा मेरे पास है। साधना 89578। उनका इंटरव्यू हो गया ना क्या? यस सर, 18 का था इंटरव्यू, कल ही सर था। हम्म 8957831। सर नोट करना है सर मुझे। No, 1 minute. I'm asking her. If she tells, I will tell you. But she has asked me her interview का recording. अभी क्यों पूछ रहे हैं? I think 22nd उनका है. She is not lifting the phone. Just a minute. Interview questions asked. I am asking her. If she tells, I will tell you. ओके सर। सर वन क्वेश्चन सर। Hello. Hello. She is not answering it. Don't worry. If I get it, I will tell you. Okay. सर वन क्वेश्चन सर।
Yeah, बोले सर ये इंटरव्यू में सर मैंने ब्लेजर नहीं लिया हुआ सर, शर्ट पैंट टाई है सर, इट इज गुड that will do. Pant, shirt, and tie will do for you. No सर? problem. लैंग्वेज लैंग्वेज Language विश्व मतलब Hindi. हिंदी सर, You are वो मतलब good. हो रहा है ना बैल You are good in Hindi, so please talk in Hindi. ओके सर, Okay. ओके सर, Thank you. Best wishes. Bye. थैंक यू सर। God bless you.